nicely struck with a good time. Very important for the batsman to check those strokes initially to get that judgment right. A wonderful tournament by Jagdamba cricketers and G boys coming together and organizing such a fantastic tournament in the loving memory of Raya Naik on this beautiful ground of Shantadurga Temple. First of its kind, the first All Goa tennis cricket tournament. Well bowled, the ball pitched beautifully and just turned away. Wonderful line that he's got in good variation from Gaja. Yogesh in the mid-off region. Rohit in the extra cover region. Once again wanted to strike Rosie, but this time missed it completely. Oh, what a throw right on the target. Excellent effort from Gaja. He is a bowler who's in thick of action. What a great thinking, that is very quick pick up and throw right bang on the target. And Babal is run out. He was short of crease by 1 meter. Had to depart. He did not expect that the bowler will collect it so smoothly and throw it so smartly. Wonderful cricket from Gaja. Under the vigilant eyes of Rajendra Dabholkar, who was an outstanding player for Goa Police. He played for such a long time, almost 10 years. I used to call him with love Raju Dabholkar, now a teacher. But he is a great cricketer. He was, and now he is, and still he will be in the future. No doubt in that. In the long on position he's been deployed. Catching practice here, and yes, it is thick edge. And Rosie wanted to play a big shot, but missed it completely. Fine edge and wicketkeeper making no mistake in grabbing that opportunity. Gaja is on head. From Maharashtra, Amchi Mancha. So wonderful bowling, great line, picking up wickets. He's on hat-trick. Beg your pardon, it's not a hat-trick. The first out was run out. That's the reason. But what a good over this is from Gaja. He set a good example of how to bowl. An example is the best language to convey the message. Just one run. What a brilliant over from Gaja, and picked up 2 wickets. He was very handy in making the run out, and then a brilliant catch from the wicketkeeper. Group B, this is the very first match. Morzai Warriors won the toss, elected to field first, and Shan Strikers batting. The winners of this match will play against Ganpati Warriors. And still to play today is Shri Badgeshwar, team coming from Mapsa, Siddheshwar Mallikarjun and Bermuda Point. So these 6 teams will be battling it out in the afternoon session of the very first day. Raj Dabholkar on the bowling mark from the Shantadurga Temple end. Raja with the ball standing in the mid-wicket region for a single. Excellent piece of fielding there and good throw from Gaja. He's a champion player. Good to watch him. He's so good at fielding, catching, making run out, bowling a tight line. Oh, low full toss and been dispatched. Oh, beg your pardon. What a brilliant catch this is from Sai. Well, it looked like the ball would have gone all the way for 6, but make no mistake, it's a catch.
What a good footing, is a good judgment. Excellent catch. Mohit is out, wanted to play for a 6 but out. And terrific catching, that is from Sai. Raju Dabulkar picking up a wicket in the second over. Is Nandu walks in at number 5. A low full toss, oh slow one, well bowled by Raju Dabulkar. Absolutely mesmerizing bowling. This is what a bowling attack from Murjai Warriors. Oh, from the leg this time. I wanted to play a reverse shot. Didn't quite time the ball. Whenever the batsman tries to hit the reverse shot, the timing has to be good. There has to be a very good eye-hand coordination, a good judgment of the ball. How the ball is coming to the bat is very important. That judgment to know for the batsman who's coming new on the crease. And especially on the striking position, the cover was beautifully put away. But once again, Sai is very quick, lightning quick. He's been brilliant with the fielding. What a wonderful catch, and a little bit of fumble there because of the uneven grass there. But he was in control of the ball, not allowed the ball to go by pass over the boundary rope. Excellent effort. In spite of that, 2 runs easy picking up here from Nandu. Oh, great hit in the gap and gains the distance as well. That's a 6. So the first sixer of the inning of the afternoon session match, and that sixer marks the end of the 2 overs. 10 for the loss of 3 wickets. टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए श्रीकांत को लाया गया है गेंदबाजी करने में, जो कि शुरुआत करेंगे तीसरी ओवर की राउंड विकेट। सनीश को पहली गेंद पर करारा शॉट, गेंद दे मारा मैदान के बाहर। 6 रनों के लिए नंदू के बल्ले से निकलता हुआ शानदार छक्का। पहली गेंद पर बिल्कुल ताबड़तोड़ हमला। ओवर रहे दोनों ओवर्स और फुल टच गेंद काफी दिशाहीन, इस बार हल्के से महंगे साबित होते हुए श्रीनाथ। नो बॉल का इशारा और एक फ्री हिट मिल सकता है। बिल्कुल यहां पर नंदू के सामने एक मौका, एक लंबा शॉट लगाने का। बिल्कुल जिस प्रकार से ओवरों को, रनों को सीमित किया गया था 2 ओवरों में, अब बिल्कुल जमकर रन मिलते हुए टीम शान स्ट्राइकर्स को। नंदू जो कि स्ट्राइक पर, सनीश नॉन स्ट्राइकर इन पर। रेफरी हिट का शॉट मिड विकेट की दिशा में, फील्डर मौजूद मगर गेंद चली जाएगी 4 रनों के लिए। खिलाड़ी को चाहिए कि कैच के लिए प्रयत्न करे, क्योंकि जब गेंद टुप्पा खाती है तो काफी उछल जाती है और पहुंच के बाहर बिल्कुल वही नजारा जो कि देखने को मिलता हुआ डीप मिड विकेट की दिशा में। सुंदर शॉट के साथ 4 रन बटोरे फ्री हिट पे। स्कोर अब तेजी से बढ़ता हुआ। श्रीकांत हल्के से महंगे साबित होते हुए तीसरी ओवर में।
सुंदर गेंद के साथ हल्की सी वापसी करती हुई शाबाश कहा राजू दाबोलकर ने। बिल्कुल ऐसी गेंदों की तलाश, मगर हालांकि पहले 2 गेंदों में सुंदर शॉट्स लगे हैं। एक लंबा छक्का, उसके बाद नो बॉल और बाउंड्री भी मिली है इस ओवर में। और फिर से एक बार सही पकड़ बनाई और गेंद को दे मारा मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। स्कोर को पहुंचाया 27 रनों पर। यह इस ओवर की दूसरा बड़ा शॉट। हालांकि 2 ओवर की समाप्ति के बाद केवल 10 रन थे और गजा ने केवल 1 रन दिए थे पहली ओवर में पावर प्ले के। तो क्या शानदार गेंदबाजी की थी और 2 विकेट लिए थे। उसमें स्वयं उन्होंने पिकअप एंड थ्रो कर एक बल्लेबाज को रन आउट किया था और दूसरे बल्लेबाज को कैच आउट, और विकेट कीपर ने काफ़ी अच्छी कैच ली थी। मगर अब स्कोर 27। नंदू बिल्कुल जमकर बल्लेबाजी करते हुए, तोड़ फोड़ की बल्लेबाजी करते हुए, हर एक गेंद पर कड़ा प्रहार, नजाकत भरे अंदाज से फिर से एक बार खेल दिया है। गेंद हवा में और वहां पर दर्शक बन के रह जाएंगे दोनों ही खिलाड़ी, देखते रह गए और गेंद निकल गई। फिर से एक बार लंबे 6 रनों के लिए। लिमिट विकेट की दिशा में और नंद को, जो कि खतरनाक बल्लेबाज साबित हो रहे थे, चलता किया श्रीकांत ने। और ये चौथा विकेट जो कि मिलता हुआ श्रीकांत को। तो देखिए ये होना चाहिए कि हिम्मत अफजाई करते हुए कि कोई नहीं हो जाता है। वेल डन, शाबाश। उन लफ्ज़ों के साथ हिम्मत अफजाई करते हुए श्रीकांत की। हालांकि जानते हैं कि काफ़ी महंगा ओवर साबित हुआ है। 2 लंबे छक्के और चौका भी लगा है। नो बॉल के साथ फ्री हिट का पूरा फ़ायदा उठाया था नंदू ने, मगर आखिरकार नंदू को आउट करने में कामयाब रहे श्रीकांत। 3 ओवरों की समाप्ति और 3 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 33, यानी कि 11 रन प्रति ओवर अब बना रही है टीम। हालांकि पहली ओवर में केवल 1 रन था। और विकेट गिरी है अब तक कुल मिलाकर 4। गुरु जो कि मैदान पर उतरे हैं और सनिश स्ट्राइक पर। तो क्या गुरु हो जाएंगे शुरू या फिर सनिश खेल कर एक अच्छी पारी खेलेंगे। तो इसी बीच श्री बोडगेश्वर की टीम आ चुकी है। उनका स्वागत तहे दिल से। सनम तेरी कसम। रोहन शेट्टी भी आए हैं, तेज गेंदबाज बोडगेश्वर एक्सप्रेस, और उनके मैनेजर भी। सभी का तहे दिल से स्वागत। प्रज्योत की गेंद लोअर फील्डर पे कड़ा प्रहार, वहां पर फील्डर की मौजूदगी, सुंदर फील्डिंग के साथ उतना ही बढ़िया थ्रो, केवल 1 रन पे रोका। बिल्कुल अब हर एक गेंद पर कड़ा प्रहार करने की कोशिश, रनों की गति को बढ़ाने की कोशिश। बिल्कुल ताबड़तोड़ हल्ला बोल की बल्लेबाजी होती हुई दोनों ही बल्लेबाजों की ओर से। इसको इस 1 रन के साथ 34 रनों पर जा पहुंचा है। और सीधे ब्लॉक होल में की थी, पैच से टकराई और एक अपील जी होती हुई। तुषार कांडुलकर का भी तहे दिल से स्वागत, जो कि उभरते हुए डैनियल विटोरी बिल्कुल अभिजीत लेकर के नक्शे कदम पर चलते हुए गोवा पुलिस के लिए खेलते हैं। तो एक फॉर्मर खिलाड़ी जो कि राजू दाबोलकर मैदान में, और एक प्रेजेंट खिलाड़ी गोवा पुलिस के जो कि मेरे बगल में तुषार कांडुलकर, उनका भी स्वागत। इस बार दिशाहीन गेंद, लेग साइड में वाइड का इशारा। मोहसिन शेख जो कि गेंदबाज की ओर, वामन मयेकर जो सबसे डिसिप्लिन अंपायरों में से एक गिने जाते हैं, और हमारे साथ कमेटी बॉक्स में है बाबू दाबोलकर, नीलेश मयेकर स्कोरर, जो कि शानदार काम करते हुए आप सुन रहे हैं नदीम अहमद को। मेरे साथ जुड़े हैं अशोक जी नाइक। पटकी हुई गेंद हवा में, कैच का मौका यहाँ पर, लॉन्ग ऑफ की दिशा योगेश। यहाँ पर बिल्कुल रोहित का कैच था और योगेश का
तो जब दोनों ही खिलाड़ी कहते हैं कि 13 है तो इस प्रकार की स्थिति उभरती है। हालांकि यहाँ पर कॉलिंग की ज़रूरत थी। एक आसान सा कैच जो कि जाता रहा, काफ़ी निराशाजनक रहा। देखिए प्रतिक्रिया अब गेंदबाज की। हालांकि प्रजय ने एक मौका बनाया था ज़रूर, लंबा शॉट खेलने का प्रयास, मगर खेल दिए थे सीधे ऊपर। गुरु जो हो गए थे शुरू, मगर भाग्यशाली रहे। तेज गेंद इस बार, सही टाइमिंग। योगेश के सर के ऊपर से गेंद गई 6 रनों के लिए। और कैमरामैन राकेश विघ्नेश और डिजिटल स्कोरर गौरव सावंत के साथ tenniscricket.in का ये बेहतरीन मुजाहिरा। और मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए, एक अच्छा टीम वर्क इस टूर्नामेंट के पीछे। और फिर से एक बार शानदार शॉट, कैच का मौका हो सकता है योगेश के लिए। और एक आसान सा कैच ले लिया योगेश ने। ऐसे लगा कि गेंद जाएगी, मगर बिल्कुल जिस प्रकार से ऋषभ पंत ने शॉट खेला था उसी प्रकार से शॉट खेला सनीश ने। एक लंबा शॉट लगाने की फिराक में बेटे और खामियाजा भुगता। इस प्रकार से और एक विकेट का पतन होता हुआ, यानी कि कुल मिलाकर अब 5 विकेटें गिरी हैं और स्कोर पहुंचा है 43 रन्स पर। डेंजर रेड कैप, मगर स्ट्राइक पर गुरु। फिर से एक बार गेंद हवा में, यहां पर गिर पड़े प्रजय और एक सुंदर कैच ली योगेश ने। मैं उम्मीद करता हूं कि कोई इंजरी नहीं हुई हो प्रजय को। हालांकि प्रजय लेना जा रहे थे, कैच स्किड हो गए, मगर रोहित ने बिल्कुल एक सुंदर कैच ली है। So he is fine, up and standing, smiling as well. So wickets are falling absolutely very quickly, and there has to be one batsman who should take the responsibility of batting department and should rise up to the occasion and play some good looking shot. Guru tried to do that, but Guru is out. This was the second chance for Guru. Krupesh is walking in. Total of 6 wickets gone down. Batting first, Shan Strikers. They are up against Morja Warriors in the very first match of Group B. Sai, who's a great fielder, and now he has been given the responsibility of the bowling in the last over, and score is 43 runs. Full toss ball, watchfully played with the gentle hands in the long off region. Excellent piece of work there. Good fielding from Yogesh. Just 1 run conceded to take the score to 44 runs. In the meantime, Shri Bodhgeshwar captain and Siddheshwar Mallikarjun captain, please come for toss. Oh, lovely shot, beautifully picked up and right. Finds the fielder there in the deep square leg region. Kalpesh is out. Wanted to accelerate and put it out of the park, but played straight to the fielder who has been deployed in the deep square leg region. So wickets are falling very quickly. Wicket number 7 goes down with a brilliant catch in the deep square leg region. The next match will be played between Shri Bodhgeshwar and Siddheshwar Mallikarjun. Both the captains are requested to please come quickly for toss. तो अशोक जी, जिस प्रकार से टाइम टू टाइम मैचेस खिलाई गई है, बिल्कुल श्रेय जाता है वामन महेकर साहब को। बिल्कुल टाइम के बड़े पक्के हैं। आज मैं केवल 5 मिनट देर हो गया, डांट पड़ी, और आप लगभग 10 बजे पहुंचे, मगर आपको मुस्कुराहट के साथ वेलकम किया गया। तो लोअर फील्डर्स में फिर से एक बार कड़ा प्रहार, इस बार फिर से एक बार सुंदर फील्डिंग, मगर 2 रन आसानी से मिल सकते हैं। हालांकि थोड़ी सी चूक जरूर हुई प्रजय की ओर से, हालांकि बाउंड्री जरूर बचाई है, मगर एक बेहतरीन अंपायरों में से
गोवा के मान्यता प्राप्त वामन मयेकर काफ़ी बिजी रहते हैं, एक शानदार शख्सियत। हाफ वॉली पे थे गेंद, पूरा खामियाजा भुगता गेंदबाज ने। साई इस प्रकार की गेंदे इस बार बेहतरीन गेंद, हालांकि बल्ले का बाहर किनारा लगा 1 रन के लिए। 2 रन की कोशिश यहाँ पर हाना दोनों के बीच होती हुई इसी बीच तुरु आ चुका है और ये रन आउट का मौका आसानी के साथ ये आउट। बिल्कुल अच्छी पोजीशन में थे वामन मयेकर, चलते चलते हट रहे थे मगर निगाहें बिल्कुल क्रीज पर। और सिद्धेश्वर मल्लिकार्जुन कैप्टन, आइए। श्री बोडगेश्वर क्रिकेट टीम आ चुकी है, कैप्टन भी आ चुके हैं। सिद्धेश्वर मल्लिकार्जुन कैप्टन, आइए प्लीज, आपका टीम लिस्ट और टॉस के लिए जल्द से जल्द संपर्क करें। तो फिलहाल मैदान पर एक बार फिर से नदीम अहमद के साथ नीलेश मयेकर और मैं अशोक नाइक। आप दोपहर के सत्र में बी ग्रुप में ये मुकाबला मैदान पर ओपनिंग जोड़ी आ चुके राजेंद्र दाभोलकर, और राजेंद्र दाभोलकर के साथ उनका साथ देने के लिए ओपनर बल्लेबाज, और टारगेट है सर मैच को जीतने का 57 रनों का। लेकिन एक तारीफ तो करनी पड़ेगी मोरजाई वॉरियर्स की पहले ओवर की गजा की। क्या गेंदबाजी पावर प्ले में, आज अगर सुबह से चर्चा की जाए तो पावर प्ले में सिर्फ 1 रन दिया था गजानन ने, 1 विकेट भी चटकाई। फिलहाल बॉलिंग मार्ग पर रोज ही दिखाई दे रहे हैं। शान स्ट्राइकर की बात करूंगा, बहुत ही शानदार पिछला जो कि ये साल उनके लिए गुजरा 2021-2020 की अगर बात की, एसपीएल सांगेम प्रीमियर लीग में एक बड़े टीम को भी परास्त किया था इसी टीम ने। पानपराग उसगांव में बिल्कुल ये चैंपियन, और हाल में मापसा में भी बिल्कुल कमाल का प्रदर्शन। तो पहली गेंद आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, शरीर पे टकराई गेंद, कोई नुकसान नहीं, अपने फॉलो थ्रो में निकले रोजे, गेंद को फील्ड करते और एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर। 57 का टारगेट है। आने वाला मैच होगा श्री बोडगेश्वर क्रिकेट टीम और सिद्धेश्वर मल्लिकार्जुन। यहाँ पर उपस्थित है श्री बोडगेश्वर क्रिकेट टीम, उनके कैप्टन सिद्धेश्वर मल्लिकार्जुन। आपको हम कॉल कर रहे हैं बार बार, आइए दोस्तों जल्द से जल्द कैप्टन टॉस के लिए और आपकी टीम लिस्ट कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। रोजी राइट हम राउंड विकेट, धीमी फेंकी गेंद, थोड़ा जल्दी खेल बैठे राजेंद्र दाभोलकर। बल्ले पे कुछ ना कुछ आवाज तो जरूर सुनाई थी, लेकिन पहले बाउंस के बाद गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। पावर प्ले का ओवर, 2 फील्डर, एक डीप लॉन्ग ऑन और एक डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग के लिए तैनात। मुकाबला मैदान पर बी ग्रुप का पहला मैच मोरजाई वॉरियर्स और शान स्ट्राइकर्स जो संगे से इस मैदान पर। फुल टॉस इस बार, और इस बार बेहतरीन शॉट राजेंद्र दाभोलकर, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गेंद चली गई। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर।
स्ट्राइक एंड पर राजेंद्र दाभोलकर और बॉलिंग मार्ग पर रोजे। अगली गेंद लेकर दाहिने से राउंड विकेट कमेंट्री बॉक्स की ओर से फुल टॉस लॉप के इस बार राजेंद्र दाभोलकर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर गेंद सीमारेखा से बाहर 6 रन के लिए। बल्लेबाज ओवर पिच इस बार उड़ाया गेंद को मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में से हवा में गोता जरूर लगाया था लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, लेकिन मौका नहीं बना। गेंद निकली उनके ऊपर से राजेंद्र दाभोलकर के बल्ले से दूसरा बड़ा शॉट 6 रन के लिए, 2 छक्के 1 चौका। पावर प्ले का पहला ओवर और स्कोरबोर्ड पर 18 रन स्कोरबोर्ड पर। और इसी के साथ की पावर प्ले में सिर्फ 1 रन दिया तो ये बिल्कुल इस मैदान पर उनको भी दाद देनी पड़ेगी। तो पहला ओवर 18 रन स्कोरबोर्ड पर और बॉलिंग में परिवर्तन और एक दिखाई देता हुआ शान स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम के ओर से दिखाई दे रहे हैं कल्पेश, खुद का पहला कृपेश गेंदबाजी पर और पहली बार सामने रोहित स्ट्राइक एंड पर। लेग ब्रेक लेग कटर, बढ़िया शुरुआत कृपेश की, शानदार गेंदबाजी मिडिल स्टंप से ऑफ स्टंप की तरफ लेग कटर लेग ब्रेक। पहला बल्ला घूम चुका था, गेंद चली गई बाद में विकेट कीपर के हाथों में। इस बार मौका रहा, ओवर पिच गेंद हाफ वाले पर तगड़ा शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से गेंद रोहित के बल्ले से सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। ऑप्टम से बाहर तेज गेंद करने के प्रयास में अपने दिशा में भटके वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, 1 रन जुड़ गया। जगदंबा क्रिकेटर्स और जी बॉयज जिनसे और से आयोजन इस टूर्नामेंट का आज का पहला दिन। अच्छा शॉट ऑफसाइड पर, कवर पर फील्डर, अच्छी फील्डिंग, सुंदर फील्डिंग। अगर रन लेते तो निश्चित रूप से खतरा बन सकता था राजेंद्र दाभोलकर के लिए, लेकिन सही समय पर अपने बढ़ते कदमों को रोका राजेंद्र दाभोलकर ने अपने क्रीज में सुरक्षित। और एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर कृपेश दाहिने से ओवर द विकेट, अच्छी गेंदबाजी, फिर की गेंदबाजी कर रहे हैं सामने रोहित उनकी गेंदबाजी के सामना करते हुए। इस बार अच्छा शॉट कारपेट के साथ खेला, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर 2 फील्डर, 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खातों में। एक शानदार आयोजन इस टूर्नामेंट का जगदंबा क्रिकेटर्स और जी बॉयज जिनके ओर से, जो कि एक याद में आदरणीय सर राया नाइक जिनकी याद में इस प्रतियोगिता का आयोजन। आज का पहला दिन ऑल गोवा फर्स्ट म्युनिसिपैलिटी पंचायत लेवल का टीम। इस बार हवा में बहुत ही सुंदर कैच, राजेंद्र दाभोलकर गलती कर बैठे, एक खराब शॉट, रिवर्स का शॉट खेलने के लिए निकले, कैच दे बैठे कवर पर और एक्स्ट्रा कवर पर उस कैच को पकड़ते हुए मोरजाई क्रिकेट टीम को लगता हुआ पहला धक्का।
यूट्यूब पर भी कई दर्शक इस टूर्नामेंट का बिल्कुल मजा ले रहे हैं। और इसी बीच राजेंद्र दाभोलकर के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज वन डाउन बैट्समैन साई मैदान पर 26। और इस बार राजेंद्र दाभोल की तरफ आते आते जो कि एक रिवर्स का शॉट खेलने के लिए निकले थे, सही संपर्क नहीं था, गली पर चौकर ने फील्डिंग। ओवर पिच गए नाड़े बल्ले से एक अच्छा शॉट ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन डीप, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर सिंगल बना स्कोर के खाते में। रन रेट की अगर बात की जाए तो बढ़िया बल्लेबाजी मोरजाई क्रिकेट टीम कर रही है। और सामने जो कि 57 का टोटल है, राजेंद्र दाभोलकर एकमात्र विकेट खो दिया है मोरजाई क्रिकेट टीम ने। और फिलहाल विराज अपने बॉलिंग मार्ग पर, साई सामने। ओवर पिच गेंद, अच्छा शॉट मिड विकेट बाउंड्री पर, फील्डर सिंगल। शायद कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई दे रही है, मालूम है टारगेट उतना बड़ा नहीं है इस मैदान पर, जो कि अगर हाईएस्ट टोटल की बात की जाए तो नदीम पिछला मैच रहा था, इससे पहले 90 का 91 का टारगेट, वो बड़े टोटल का मैच रहा था। और विराज एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स की ओर से, ओह ताकत बड़ा शॉट, ओवर पिच गेंद, बल्लेबाज के रडार में गेंद थी, इस बार स्लॉट में गेंद थी, बल्ले के बीचों बीच हाफ वाले पर एक तगड़ा शॉट, डीप लॉन्ग ऑन पर 6 रन। बहुत बढ़िया शॉट रोहित स्ट्राइक एंड पर, छोटी गेंद पुल करना चाहते थे, अपने आप पर नाखुश हो गए। मौका था, मालूम था इस गेंद पर एक बड़ा शॉट होना चाहिए था, लेकिन गेंद में काफी रफ्तार थी, काफी गति के साथ इस बार गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। शॉट ऑफ लेन गेंद, और विराज एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर, 4 फील्डर ऑफ साइड पर, 5 ऑन साइड पर। और इस बार गलती कर बैठे, मौका रहेगा, कवर पर एक आसान सा मौका, रोहित आउट होकर वापस। दूसरा धक्का लगता हुआ टीम को, मोरजाई वॉरियर्स क्रिकेट टीम को, और दूसरे विकेट पर 34 रन टोटल, 34, लॉस ऑफ 2 विकेट। जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बेहतरीन साउंड सिस्टम। और उसी के साथ इस मैच को कवर कर रहे यूट्यूब पर हमारे बिल्कुल जो कि राकेश हिरवाड़े कैमरामैन, और विघ्नेश दुड़े और राकेश हिरवाड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट्री बॉक्स में से। विराज सही स्ट्राइक पर और नए बल्लेबाज, अच्छा शॉट मिड विकेट पर, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए, गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। साई के बल्ले से शानदार शॉट, 6 रन स्कोर के खाते में, स्कोर आगे निकला, 40 पर पहुंचा। 17 रन अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए, और आने वाले 2 ओवर का 12 गेंदों का खेल बाकी। बॉलिंग में परिवर्तन, स्वप्निल गेंदबाजी पर। 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी है, 12 गेंदों का, और मैच को जीतने के लिए चाहिए 17 रन। 12 बॉल्स 70 रन, और स्वप्निल नया ओवर लेकर
अड़े बल्ले से इस बार खेला इनको ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर सिंगल। बहुत ही अच्छा मुकाबला हो रहा है मैदान पर। अगर एक आध दूसरा विकेट और मिला तो शान स्ट्राइकर आखिर तक ये मैच को लेके जाएंगे। और अगर एक बड़ा शॉट निकला तो रनों और गेंदों की अगर बात की जाए तो थोड़ा काम आसान होगा मोरजाई क्रिकेट टीम को। ओवर पिच उड़ाया, मिड विकेट बाउंड्री से ऊपर से गेंद सी मारेका को पार करते हुए 6 रन के लिए। अगर शॉट लगा तो शायद गेंदों और रनों का फासला बदल जाएगा। 10 गेंदों में 10 रन। अच्छा शॉट बैकफुट पर जाकर कट किया इस बार बड़े खूबसूरती के साथ, कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद 4 रन के लिए। बहुत ही आला शॉट, बहुत बढ़िया शॉट, बैकफुट पर निकले, शॉट ऑफ लेन गए थोड़ी सी और एक अच्छा शॉट 4 रन के लिए। डीजे मैच को समाप्त कर देंगे। वही लगा, सामने उड़ाया, कमेंट्री बॉक्स के बगल में गेंद सी मारेका से बाहर, सही के बल्ले से 6 रन और इसी के साथ मोरजाई वॉरियर्स ने इस मैच को जीता। तो बहुत बहुत अभिनंदन आपका उन्हीं के साथ जो कि इस बल्लेबाजी को मौका दिया है श्री बोडगेश्वर क्रिकेट टीम को। कमेंट्री बॉक्स में बदलाव, हमारे स्कोरर भी बदल चुके हैं, थोड़ा सा खा पी कर आ चुके हैं हमारे बगल में जो लेफ्ट हैंडर स्कोरर हमारे रोहित, और कमेंट्री बॉक्स में